now after this we are going into the effect of wind. So any doubt in this, beta? No, sir. Very good, beta. So let us see the effect of wind now. We will understand कि wind हमें कैसे affect करती है और चार्ट वर्क में हम wind को कैसे कंसिडर करते हैं. सर ये दो एलिमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो तीसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? That's right, बेटा. अगर दो एलिमेंट क्लॉकवाइज हैं तो तीसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. ओके सर. और जो तीसरा वाला होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वो हमेशा कोर्स मेड गुड वेक्टर होता है. CTS और करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो दोनों के दोनों क्लॉकवाइज या दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज. जो CMG वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा बाकी दोनों के ऑपोजिट होती है. ओके सर. ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड. Now let us understand wind and its effect on the ship's track. बेटा वीडियो की साउंड आ रही है? यस सर आ रही है. Yes, sir. ओके बेटा. Wind is a continuous directed flow or movement of atmospheric air because of different atmospheric pressure over different regions. Direction of the wind, the direction from which it comes. That is, northerly wind means wind is blowing from north towards south. So please remember, the convention used for naming the direction of the current is opposite to the convention used for naming the direction of wind. So बेटा नदरली विंड का क्या मतलब है? विंड नॉर्थ से आ रही है या साउथ से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है सर. वेरी गुड बेटा. और अगर मैं बोलूँ नदरली करंट है तो वो नॉर्थ से आ रहा है या साउथ से आ रहा है? नॉर्थ में जा रहा है सर, इसका मतलब साउथ से आ रहा है सर, नॉर्थ में जा रहा है. North से आ रहा है, north में जा रहा है. वेरी गुड बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना है. व्हाट यू सेड इज करेक्ट. विंड ऑलवेज कम्स फ्रॉम, विंड को उसी डायरेक्शन का नाम दिया जाता है जहाँ से वो आती है. एंड करंट ऑलवेज गोज टू, करंट को उस डायरेक्शन का नाम दिया जाता है जहाँ वो हमें लेके जाता है. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसकी वजह से गलती नहीं करनी है, इसे ध्यान में रखना है. Wind affects the ship's track through water as well as over the ground. The track through water allowing the effect of wind is referred to as effective course or leeway track. So once we allow for wind on the course that the ship is steering, the track that you obtain will be referred to as effective course track or the leeway track. Angle between the course to steer track and the leeway track is referred to as leeway. In chart work, effect of wind on ship speed is intentionally left out because of limitations on number of elements of the vector triangle. However, practically, it may not be of much concern for the simple reason that very seldom would we have wind alone and no current, because if the wind blows over the surface of sea for some time, the least it would give rise to are the frictional currents. So when wind and current often coexist, so even if the effect of wind has not in isolation been considered, it will automatically show up when the current is estimated, and as far as the ship is concerned, it will be taken care of. So that is if they coexist. However, if you talk of a hypothetical situation where there is only wind and no current, then yes, the effect of wind on the speed of the ship in chart work is intentionally left out. But again, I would say in practical considerations, it may not be a serious omission. So beta, just read these points in your mind, go through one by one, and let me know any doubts which you are having.
विंडवर्ड ट्रैक भी होता है क्या? आस्क अगेन बेटा। जैसे लीवे ट्रैक है तो विंडवर्ड ट्रैक भी होता है क्या कुछ? नहीं बेटा, विंडवर्ड ट्रैक नहीं होता है, सिर्फ लीवे ट्रैक ही होता है। सो अभी हम देखेंगे कि ये लीवे ट्रैक कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, let's proceed ahead and we will see this on the chart now. Allowing wind is the term used when we know our CTS and we are required to find our effective course or the leeway track after factoring in wind. How do we allow for wind? Let us see it through a simple illustration. The vessel is at position X, is steering a course along XY track, experiencing wind which is southerly as shown by the wind arrow. Now we have to allow the given leeway. Now the leeway, when you allow for wind, the leeway must be allowed to the lee side of the vessel or should be allowed downwind, whichever way you're convenient, it's comfortable for you to remember. Now in this case, the wind is blowing from the starboard side of the vessel. So the port side of the ship is the lee side, or the starboard side is into the wind side and port side is the downwind side. So whichever way you are comfortable, you may remember it. So in our case, the leeway shall be applied downwind as shown in the diagram. This is applied on the downside or downwind side or lee side. And this track XZ that we are getting is the effective course or the leeway track. The magnitude of this leeway track shall be engine distance, which in the absence of wind was the magnitude of the CTS track. So beta, is this clear now? We have the course steered in this diagram. We have the wind also represented by the arrow, and we have the effective course or the leeway track. Wind is pushing the ship from the starboard side, and the ship is actually moving on the XZ track. Any doubt in this, beta? Sir, the Sir, leeway track अगर consists of wind, correct sir? Not any effect of current when we plot the leeway track. Beta, ask again, once again. Sir, when leeway track is plotted, sir, it is only having the effect of wind and no effect of current. Is this correct? That is right, बेटा, that is right. लीवर ट्रैक में सिर्फ विंड का इफेक्ट ही कंसिडर होता है, करंट इसमें कंसिडर नहीं हो रहा है। सर अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि करंट नॉर्थवर्ड जा रहा है, तो उसके अगर मतलब जैसे कि विंड एक साइड से लग रही है, करंट उसके अपोजिट लग रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा सर उस केस में? ओके अगर बेटा, सेम अमाउंट का जैसे लीवे मेरा 2 डिग्री डेविएट हो रहा है, तो 2 डिग्री मेरा करंट उधर में जा रहा है, तो मेरा सीटीएस ही सीएमजी हो जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। करंट का जो इफेक्ट है वो हम वेक्टर ट्रायंगल के मेथड से ही लगाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था ना, अलाउइंग फॉर द करंट, काउंटरएक्टिंग द यस सर। करंट। करंट को तो वेक्टर ट्रायंगल के मेथड से ही लगाया जाता है, विंड को वेक्टर ट्रायंगल के मेथड से नहीं लगाया जाता, विंड को लीवे एंगल के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, सदरली विंड है, लीवे एंगल उन्होंने हमें बता दिया है, तो सिर्फ हमारे कोर्स में चेंज आएगा। इंस्टेड ऑफ एक्स वाई आवर कोर्स वुड बिकम एक्स टू जेड। इसमें कोई वेक्टर ट्रायंगल नहीं बनती है, सिर्फ इस लीवे एंगल को अप्लाई किया जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, हाँ जैसे बोलो। इसी क्वेश्चन में हमको करंट भी दे दिया साथ में, नॉर्थर्ली करंट है, तो लीवे ट्रैक ड्रॉ करके उसके बाद जो भी अलाउइंग या फिर काउंटरएक्टिंग वो बाद में ड्रॉ करेंगे लीवे ट्रैक के अंदर। एग्जैक्टली बेटा, राइट 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 राइट। मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर विंड और करंट एक साथ आ जाएं तो फिर हमें उसको कैसे अलाउ करना है और कैसे काउंटरैक्ट करना है, उसका सीक्वेंस है। तो अभी हम वो सीक्वेंस भी देखेंगे। सो अभी पहले विंड को अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर उसके बाद दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी देखेंगे।
चलें बेटा आगे? यस सर। ओके, सर वेरी डाउट गुड। था, बोलो बेटा। तो जैसे इसमें कोर्स आपका 270 है और विंड ईस्टर्ली हो तो ओके, सो आप बोल रहे हो कि कोर्स 270 है, मतलब हम वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहे हैं, और विंड जो है ये क्या है बेटा? ईस्टर्ली सर, ईस्ट से आ रही है। ईस्टर्ली विंड है, तो इसका मतलब विंड बिल्कुल राइट एस्टर्न से आ रही है, करेक्ट? राइट अहेड हुई ना सर। बेटा आप 270 पे जा रहे हो, शिप इज हेडिंग इन द वेस्टर्ली डायरेक्शन, विंड इज ईस्टर्ली। ईस्टर्ली का मतलब है कि विंड ईस्ट से आ रही है, यस सर। तो बेटा आपके बिल्कुल पीछे से आएगी ना? राइट बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड? सर वैसे 090 जा रहा है, अब बताओ सर। ओके, सो अब हम 090 जा रहे हैं, जैसे ये एक्स वाई यहाँ यस पे सर। देख रहे हो आप, और हाँ ईस्टर्ली विंड है, तो इसका मतलब है विंड राइट अहेड से आ रही है, करेक्ट? यस सर। अब ऐसे केस में बेटा विंड का जो लीवे एंगल होगा ना वो ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपको ना तो स्टारबोर्ड साइड से पुश कर रही है ना पोर्ट साइड से, वो तो राइट अहेड से आ रही है। सो ऐसे केस में लीवे जो है ये ज़ीरो हो जाएगा और विंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे ट्रैक पे। सर ये स्पीड रिड्यूस इंक्रीज करेगी इस केस में। राइट, अब बेटा प्रैक्टिकली तो आपकी स्पीड रिड्यूस करेगी, जब भी विंड आगे से होगी तो आपकी स्पीड पे ड्रॉप आएगा, आपकी स्पीड रिड्यूस करेगी। लेकिन चार्ट वर्क में हम लोग विंड का इफेक्ट स्पीड पे कंसिडर नहीं करते हैं, ओके? हम लोग चार्ट वर्क में विंड का जो इफेक्ट है अपनी स्पीड पे कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि विंड का हमारी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, इतना समझ आया? यस सर। अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि सर प्रैक्टिकली तो स्पीड का इफेक्ट पड़ता है, अगर विंड आगे से होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर विंड पीछे से होगी तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो फिर हम इसे चार्ट वर्क में कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा चार्ट वर्क में जो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं उसमें हमारे पास कोई मेथड नहीं है जिसके साथ हम विंड का इफेक्ट अपनी स्पीड पे कंसिडर कर सकें। क्वेश्चन बहुत बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसमें फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आ जाएंगी, हम उनको अवॉइड करते हैं। सो इसलिए विंड का जो भी इफ़ेक्ट हमारी स्पीड पे पड़ता है उसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, और उसे निगलेक्ट करने से हमारे आंसर्स में कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल डिफरेंस या एरर नहीं आती है। ओके बेटा, अंडरस्टूड? अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हो तो ओके मैग्नीट्यूड कम हो सर। सकता है ना सीटीएस का, तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा उससे तो। ओके, देखो बेटा विंड की स्पीड ज़्यादा हो गई, ओके, अब हम लोग उसका इफेक्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं अपनी स्पीड पे, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, राइट? सर हाँ, वो डिफरेंस नहीं आएगा, उसका रीज़न ये है कि अगर बहुत फास्ट विंड जो है किसी एरिया पे, पावरफुल विंड जो है वो चल रही है, तो विंड जो है अपने साथ साथ सी वाटर को भी कैरी करना शुरू कर देती है, मतलब करंट को भी जनरेट कर देती है, तो उस एरिया में करंट भी जनरेट हो जाएगा। जब करंट जनरेट होगा तो उसका इफेक्ट तो हम अपनी स्पीड पे ले ही रहे हैं ना, तो ऐसे यस केस में अगर विंड आगे से हो वो हमें करंट भी बताएंगे, तो हम वो करंट का इफेक्ट जब कंसिडर करेंगे तो हमारी स्पीड में उसका इफेक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसको अकाउंट कर लेंगे हम लोग और हमारा आंसर सही आएगा। ओके बेटा, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, so let's move ahead now. This is known as allowing for the wind. Counteracting wind shall be the scenario in which the effective course track or the leeway track is known to us and the CTS is to be found. Let us say the vessel is at point X and X to Z is the effective course track or the leeway track. Magnitude of this vector shall be the engine distance.
The wind experienced is southerly as shown by the wind arrow. And now we have to get the CTS. The leeway has to be counteracted. When counteracting, leeway has to be drawn on the windward side or into the wind. In this case, the starboard side of the vessel is the windward side, and therefore the leeway is factored as shown. And as we draw the leeway into the wind, the vector that we get xy is the CTS vector, and two course to steer shall be represented by xy. So बेटा this is counteracting the wind. So अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या डाउट आ रहा है. फाइनल पोजीशन पे भी कुछ कर सकता है क्या, जैसे करंट में किया था? आई डिडंट गेट योर डाउट बेटा, फिर से पूछो. करंट में हमने जो हमारा बाद में एस्टिमेटेड पोजीशन आई थी वहाँ पे भी कर सकते थे, और इनिशियल पोजीशन पे काउंटरैक्टिंग लगाया था हमने, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर? नहीं बेटा नहीं, इसमें हम लोग वेक्टर ट्रायंगल बना नहीं रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आती नहीं है. जो लीवे एंगल है ये तो वेक्टर पे ही लगाया जाता है. जैसे हमारा शिप जो है ये z पॉइंट पे पहुंचना चाहता था, वी वर एट x, हमें z पॉइंट पे पहुंचना है. तो अब x टू z अगर हमें जाना है, विंड है सदरली, विंड हमें पुश करेगी. अगर मैं x टू z कोर्स स्टीयर करना शुरू कर दूं तो मैं तो z के भी नॉर्थ में चला जाऊंगा. सो मैंने अब क्या किया, जो भी लीवे एंगल मुझे दिया था क्वेश्चन में, मैंने वो लीवे एंगल को यहाँ अप्लाई कर दिया टू द विंडवर्ड साइड, एंड नाउ आई विल बी स्टीयरिंग XY कोर्स. लेट अस से जो XZ ट्रैक था हमारा वो था 085 की डायरेक्शन में था. लीवे एंगल था 5 डिग्री. जब मैं ये 5 डिग्री अप्लाई करूंगा तो मेरा कोर्स टू स्टीयर कितना आ जाएगा बेटा? 90. वेरी गुड. सो मैं 090 को स्टीयर करूंगा. विंड मुझे पुश करेगी स्टारबोर्ड साइड से, 5 डिग्री विंड की पुशिंग होगी और मैं 085 के ट्रैक पे एक्चुअली चलूंगा. सो दिस इज नोन एज काउंटर एक्टिंग द विंड. ओके सर. ओके, सो चलें बेटा, आगे चलें. Yes, sir. राइट. Now, if we have a situation in which we have to factor in both wind and current, then there are few questions we need to ask ourselves before we proceed with the plotting. Question number 1, is it allowing for or counteracting? If CTS is given, CMG is to be found, it is allowing for. And if CMG is given, CTS is to be found, it's counteracting. When allowing for, we ask ourselves what to allow first. In the allowing case, we first allow for wind followed by current. Let us see how we allow each of them through this illustration. The vessel is at position X. He's steering a course represented by this light blue course to steer vector on the chart. Vessel experiences southerly wind represented by the wind arrow. And now we allow for wind. When we allow for wind, we know it has to be allowed on the lee side. So we allow wind on the lee side, and what we get is the leeway track or the effective course track. On this track, we cut off engine distance, mark of engine distance, for the interval for which we intend making the vector triangle. So the magnitude of this vector shall be engine distance, and this vector is represented by single arrow, and we reach point Y. Now we have to allow for current.
When we allow for current, we have already learned current will be drawn at point Y, and drift of this current shall be for the same interval for which the engine distance was taken, and that brings us to point Z. Point Z is the position of the vessel. X to Z becomes course made good and distance made good track, and it's represented by 2 arrows. So now we see in this triangle, we have the leeway track with magnitude as engine distance, we have the current track, and we have the CMG DMG track. So beta, have a good look at this diagram, at the plot, and let me know any doubts coming to the mind. सर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये CTS नहीं दिखाएंगे ना हम? दैट्स राइट बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ बना दिया है, पर जब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो CTS को चार्ट पे नहीं दिखाते हैं, इसको सिर्फ आंसर शीट पे ही लिखते हैं। और सर अगर क्वेश्चन इसका रिवर्स होता कि हमें पूछ लेता कि CTS निकालो, तो हम दिखाते उस पे बना के, उसमें हम नहीं बेटा, अभी leeway track करेंगे नहीं उसको दिखाते। CTS निकालने को हम बोलते हैं काउंटर एक्टिंग द विंड एंड करंट, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट वेट फॉर ए मिनट, अभी मैं आपको काउंटर एक्ट करके भी दिखाऊंगा। और बेटा, एनी मोर डाउट इन दिस? ओके, वेरी गुड। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप अलाउ करोगे, अलाउ, तो सबसे पहले विंड को अलाउ करना है। देखो, हमने जो CTS था हमारा, जो लाइट ग्रे कलर में हमने शो किया है, उस पर पहले विंड को लगाया है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करंट को पहले लगा दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। सो हमने अलाउ करने के टाइम पे पहले क्या लगाना है? विंड को लगाना है। फिर उसके बाद जब विंड को अप्लाई कर दिया, उसके बाद करंट को अलाउ करना है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं करनी है। सो लेट अस प्रोसीड अहेड नाउ। इसका बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सेव इट, so you know this is the sequence in which they are to be allowed. लिया सर। Very good beta, let's proceed ahead now. सर फर्स्ट विंड फिर सेकंड करंट का है सर? Beta, ask again. सर हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट विंड है देन करंट है, करेक्ट सर? यही है ना सीक्वेंस हमारा? वेरी राइट बेटा, अलाउ के केस में पहले विंड और फिर करंट। काउंटर एक्टिंग में उल्टा हो जाएगा बेटा, अभी मैं काउंटर एक्टिंग आपको दिखाऊंगा, उसमें सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। सो अलाउइंग के केस में पहले विंड फिर करंट। ओके, okay. Let's proceed ahead now. For both wind and current. When factoring in both, Okay sir, okay, thank you. We determine that they have to be counteracted. That means CMG is known and CTS is to be found. Please remember, we need to first counteract current followed by wind. And how do we counteract them? Let's learn through this simple illustration on the chart. The vessel is at position X. It needs to reach point Z in a certain time. So XZ represents CMG and DMG track, represented by 2 arrows. We first counteract current, and we know when the current has to be counteracted,
it has to be drawn at the starting point of the CMG line, that means X. We draw the current here. We represent with 3 arrows, mark of drift for the same interval for which the DMG is there on XZ, and we obtain this point Y. We join Y to Z, and YZ represents the effective course track or the leeway track, and the magnitude of this vector represents engine distance in the duration of the vector triangle. This effective track or the leeway track is represented by one arrow. Now we come to counteracting of the wind. Wind experienced, if it is southerly, represented by the wind arrow. Then to counteract wind, we allow the leeway, or we draw the leeway, rather, I'm sorry, we draw the leeway into the wind or to the windward. This is how the leeway will be counteracted into the wind, and the track that we obtain is the course to steer track. Now, please remember that this leeway would be a very, very small quantity, maybe 2, 3, 4 degrees. So if we draw both leeway track as well as the CTS track on the chart, it may lead to cluttering of the plot. So if we want, the wind can be allowed or counteracted on answer sheet, and on the chart, we can plot and use only the leeway track. So if we want, we could do so, and that shall take care of our requirement. So beta, this is counteracting. First we counteract for the current and then we counteract for the wind. Let me know your doubts in this beta. तो सर इस केस में हम दोनों दिखाएंगे, लीवे ट्रैक भी और CTS भी? नहीं बेटा, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों शो किए हुए हैं, और जब आप प्रैक्टिकली चार्ट पे ये प्लॉट बनाओगे तो CTS को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इफेक्टिव कोर्स को या लीवे ट्रैक को ही चार्ट पे शो करोगे, और फिर इसे रीड आउट करके आंसर शीट में ही हम लीवे एंगल लगाएंगे, आंसर शीट में ही CTS निकाल के शो कर देंगे। ओके सर। सर इस केस में हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, Z से ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट लगा देते और फिर हमारा X और Z से हम पॉइंट Y मान लेते ऊपर, इसका रिवर्स भी कर सकते थे ना ऊपर की साइड? आप बोल रहे हो कि करंट वेक्टर को हम Z पॉइंट पे लगा दें? यस सर, ऊपर की साइड अपवर्ड। हाँ, फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। बेटा वो मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन चार्ट वर्क में यूजुअली हम ऐसे करते नहीं हैं। मैथमेटिकली सही है, आपका आंसर सही आएगा, पर चार्ट वर्क में हम काउंटर एक्टिंग में हमेशा करंट को फर्स्ट पॉइंट पे लगाते हैं। सर अगर मैं वैसे करूँगा तो गलत हो जाएगा? अगर कोई ऐसा कर दे तो? बेटा जैसा मैंने बोला, आपका आंसर सही आएगा, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। अगर मैं पेपर चेक कर रहा हुआ तो पूरे नंबर दूंगा, लेकिन अगर कोई और पेपर चेक करेगा तो बेटा नंबर काट भी सकता है। ओके सर। ओके, सो दैट इज द थिंग बेटा। अभी क्वेश्चन आ सकता है, काउंटर एक्टिंग फॉर wind. बेटा यू गॉट ब्रोकन इन बिटवीन, रिपीट प्लीज। सर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, काउंटर एक्टिंग फॉर करंट एंड अलाउइंग फॉर विंड? नहीं बेटा, ऐसा सवाल नहीं हो सकता। या तो दोनों के दोनों काउंटर एक्टिंग होंगे या दोनों के दोनों अलाउ होंगे। ओके सर। ओके, सो अब बेटा मैं आपको, इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड आल्सो। ओके सर। ओके बेटा, सो
नाउ बेटा मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट भी पोस्ट कर रहा हूँ एंड उस असाइनमेंट के साथ आपको डेविएशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी टू गेट द कंपास एरर। डेविएशन कार्ड भी मैं उस पर डाल रहा हूँ और इसके साथ ही मैं उस असाइनमेंट के सोल्यूशन भी डाल रहा हूँ। ओके, पर वो सोल्यूशन इसके लिए नहीं है कि आप पहले ही उसे देख लो और फिर सोचो हमें यह सवाल आता है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन इस पर्पज़ के लिए है कि जब आप चार्ट पे अपना प्लॉट बना लोगे और आंसर निकाल लोगे तो अपनी वर्किंग को चेक करने के लिए वो सोल्यूशन को यूज़ किया जा सकता है। ओके ओके सर। ओके, और ये जो असाइनमेंट है इसे आपने फेयर में करना है। चार्ट वर्क की जो नोटबुक लगा रखी है उस नोटबुक में करना है। और जो चार्ट पे आप डायग्राम बनाओगे, जब और सवाल करेंगे तो फिर इसको इरेज करना पड़ेगा ना, जो प्लॉट अभी बनेंगे, तो उन प्लॉट्स की फ़ोटो लेके अपने पास सेव करते चले जाना है। ओके, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसका प्लॉट चार्ट पे बन गया। अब आप नंबर 2 करने वाले हो तो उसको इरेज करना पड़ सकता है, तो आपने नंबर 1 करने के बाद उसकी फ़ोटो ले लेनी है और सेव कर लेनी है अपने पास। ओके सर बेटा? ऐसे भी कर सकते हैं ना, उसका स्केच हम नोटबुक में बना देंगे। बेटा स्केच भी बना सकते हो आप, but I would recommend you save the photo of the actual plot on the chart. ओके ओके सर। फिर उसे आप अपने डिवाइस में रख सकते हो। आप वहाँ लिख लो असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 1 2 3 4, तो आपके पास वो एक सीक्वेंस में सबके आंसर आ जाएंगे। ओके, रफ डायग्राम से फिर चेक नहीं कर सकते ना कि आंसर सही आया या गलत आया, गलती कहाँ पे हुई, ये नहीं चेक कर पाओगे आप। यस सर। ओके, सो इसे नोटबुक में करना है, ऐसे नहीं कि सर हमने तो रफ पेज पे किया था, वो पेज तो अब सर वो भुजिया खाया था, पेज तो चले गए, अब तो कुछ नहीं है हमारे पास। इसे नोटबुक में करना है बेटा, फेयर। ओके ओके, ऑल राइट। सो इस एक्सरसाइज में जो असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी तक जो भी हमने किया है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे। सो I am sending you this on the WhatsApp group, so you can start working on it and you can stay logged in till 45. जो भी डाउट्स आएंगे आई मे लीव इन बिटवीन, सो जो भी डाउट्स आएंगे वो अपने पास रखो आप, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर अप द डाउट्स ऑल्सो। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, ऑल राइट। So let me send that assignment to you on the group. I am sending it right now.